morning class. Today we will read the remaining part of chapter 16, freedom struggle. Okay, so our topic is foundation of Indian National Congress. So in 1885, A.O. Hume, a retired civil servant, with the help of educated Indians, founded the Indian National Congress. The first session was held in Bombay under the presidentship of W.C. Banerjee. The session was attended by 72 delegates. The Congress soon spread all over the country and it became the voice of the entire nation. Congress in its annual session demanded that Indians be allowed to manage their own affairs. Basically, what was the motto of the Indian National Congress? The main goal was to win स्वराज और सेल्फ रूल. उनको अपने लिए सेल्फ रूल चाहिए था जिसको वो पूरा अपने कंट्री को खुद से रूल कर सके. सो दिस वाज द अदरवाइज दे वर हैविंग अदर गोल्स ऑल्सो. द गोल्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस first was to bring together leaders from all parts of the country. Second, to remove prejudices of race, religion and region. To discuss the problems related to India, to form an action plan to get concessions from the British. But the main goal was they want to win Swaraj or self-reliance. The most important leader of the Congress in early days were Dadabhai Naoroji, S.st Banerjee, G. Subramaniam Iyer, Gopal Krishna Gokhale and Badruddin Tayyabji. Clear? These were the leaders who joined the National Congress Party in early days. Till 1905, the leadership of the Congress remained in the hands of men who were moderates in their attitude. Moderates believe in methods of patience and persuasion. Who were moderates? जो patience रख के चलते थे, सब्र रख कर चलते थे, चलो ठीक हो जाएगा. तो these were the moderates. Clear? But the peaceful method did not helpful in solving the problems of the people. वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, वो प्यार से समझाते थे. ठीक है, अब प्यार से समझाने से ब्रिटिशर्स को बात समझ नहीं आती थी. So, peaceful methods did not help in solving the problem of people. Thus, strong actions was needed. Bal Gangadhar Tilak, Bipin Chandra Pal, Lala Lajpat Rai and others were against moderate attitude. Means उनको ये प्यार से बात करने वाली बात समझ नहीं आती थी. किनको? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल. These were the leaders. Tilak tried to draw the common people and the youth of the country into the struggle for freedom. He wrote against the British Raj in his paper Kesari. First time किसी ने इतनी हिम्मत दिखाई कि उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपने न्यूज़पेपर केसरी में लिखा. Tilak declared, freedom is my birthright and I will have it. उन्होंने क्या लिखा? Freedom is my birthright. आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है and I will have it. और मैं इसको लेकर रहूँगा. A number of youth people joined this group. अब इस ग्रुप number of youth people, youth means जो young age के लोग थे, उन्होंने इस ग्रुप को join किया. They were called extremists. Earlier we read moderates, now extremists. Extremists felt this strong action was needed to make the British understand their problems and desire to be free. Now अब ये सब चीज़ें देखकर जो ब्रिटिशर्स थे वो थोड़ा डर गए थे. तो we will read policy of divide and rule. Divide and rule से ही आपको समझ आएगा कि डिवाइड करो और फिर उसको उस पर रूल करो. जैसे कि सपोज अगर आप बहुत सारे फ्रेंड्स एक साथ रहते हो, यूनाइटेड रहते हो, तो कोई भी आपसे लड़ नहीं सकता, कोई भी आपको हरा नहीं सकता. लेकिन अगर आप यूनाइटेड नहीं हो, अगर आप एक साथ नहीं हो, तो कोई भी आपके ऊपर रूल कर सकता है. So as the years passed, the Congress gained strength and the people from all walks of life supported it. This created a sense of fear in the British. अब सब लोग कांग्रेस पार्टी जो थी उसको ज्वाइन करने लगे थे, बाल गंगाधर तिलक के साथ उनके ग्रुप में आने लगे थे. तो ये देखकर जो ब्रिटिशर्स थे वो थोड़ा डर गए थे. दे यूज द डिवाइड एंड रूल पॉलिसी टू वीकन द यूनाइटेड इंडियंस एंड फ्रीडम मूवमेंट. They plan to divide Bengal in two parts on the basis of Hindu and Muslim population. What they did, you know what they did? उन्होंने बंगाल का पार्टीशन कर दिया
और जो लोग थे उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट बंगाल को में उन्होंने बोला इस पार्ट में इंडियंस हिंदूज रहेंगे और इसमें मुस्लिम्स रहेंगे। अभी तक ऐसा नहीं था, वो कभी हिंदू मुस्लिम ऐसा नहीं सोचते थे कि हम हिंदू हैं हम मुस्लिम हैं, वो बस इतना सोचते थे हम इंडियंस हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉलो करके बंगाल का पार्टीशन कर दिया और लोगों को हिंदू और मुस्लिम के बेस पर डिवाइड कर दिया। ईस्ट बंगाल फॉर द मुस्लिम्स एंड द वेस्ट बंगाल फॉर द हिंदूज। Therefore, in 1905 the partition of Bengal was announced और इस तरह से 1905 में बंगाल का पार्टीशन अनाउंस्ड हो गया। अब नेक्स्ट इज स्वदेशी मूवमेंट। दिस प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पार्टीशन वर अकम्पेन्ड बाय द बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश गुड्स। अब लोगों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने ब्रिटिश गुड्स को वो बॉयकॉट करने लगे। बॉयकॉट मतलब उसके उन्होंने कहा हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। इट मीन्स यूजिंग गुड्स मेड इन इंडिया ओनली। जैसे कि लाइक अभी मोदी जी ने भी एक पॉलिसी फॉलो किया, आत्मनिर्भर भारत स्टार्ट किया ना उन्होंने। उसमें भी आपने देखा होगा न्यूज़ में जो विदेशी सामान था चीन का, उस सबको सब लोग अपने घर से जला रहे थे। तो उस टाइम स्वदेशी मूवमेंट में भी ये हुआ था कि जो इंडियंस थे उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामान को आग लगा दी थी। ठीक है, इट इज़ रिटन हेयर इट वॉज कॉल्ड स्वदेशी मूवमेंट। द स्टूडेंट्स इन बंगाल टुक एक्टिव पार्ट इन दिस मूवमेंट। और इसमें सबसे ज़्यादा जो पार्ट लिया था वो स्टूडेंट्स ने लिया था। ब्रिटिश क्लोथ्स वर बर्नड इन हीप्स। जो ब्रिटिश क्लोथ्स थे, आई टोल्ड यू इन लास्ट चैप्टर कि ब्रिटेन से क्लोथ आता था, वो इंडियंस को लेना होता था, वो अपना क्लोथ भी नहीं बना पाते थे। तो जो इंडियंस थे उन्होंने जो ब्रिटिश क्लोथ था उसको क्या कर दिया, बर्न कर दिया। द रूलर्स वॉन्टेड द पीपल ऑफ द रूलर्स वॉन्ट द पीपल ऑफ एक्सट्रीम मेजर्स। जो रूलर्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने लोगों को वॉर्न किया कि अगर आप ऐसा करोगे तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। द ब्रिटिश कुड नॉट फेस दिस मूवमेंट, दे हैड टू अबॉलिश द पार्टीशन एंड बंगाल वॉज यूनाइटेड इन। लेकिन जो इंडियंस थे वो डरे नहीं और उन्होंने ऐसा ही करना जारी रखा और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने फिर से बंगाल को यूनाइटेड कर दिया, एक साथ कर दिया इन 1911 में। स्वदेशी एंड बॉयकॉट चेंज द टोन ऑफ द नेशनल मूवमेंट। वीमेन ऑल्सो टुक पार्ट इन बिग वे। अब जो नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसकी टोन ही चेंज हो गई। पहले तो केवल बॉयज़ ने पार्टिसिपेट किया था, अब क्या हुआ इसमें, विमेन जो थी, औरतें जो थी, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना शुरू कर दिया। Now, revolutionaries, the powerful agitations and boycotts did not affect the British rulers. Meeting force with force became popular way among the youth to gain back quick freedom. Such people were called revolutionaries. 2 young boys, Praful Chakki and Khudiram Bose, fired at a British officer. Khudiram Bose, only 15 years old, was arrested and hanged. ब्रिटिशर्स जो थे वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे थे, वो बिल्कुल नहीं मान रहे थे। उन्होंने एक 15 ईयर्स बॉय को क्या किया, अरेस्ट किया, उसको हैंग कर दिया। चंद्रशेखर आज़ाद वॉज अ ग्रेट रिवोल्यूशनरी। चंद्रशेखर आज़ाद भी एक ग्रेट रिवोल्यूशनरी थे। सम पीपल स्टार्टेड वर्किंग फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर द फ्रीडम ऑफ इंडिया। अब कुछ लोग बाहर रहते हुए भी इंडिया के फ्रीडम के लिए वर्क करने लगे। लाइक मैडम कैम्प वेंट टू जिनेवा एंड पब्लिश्ड अ न्यूज़पेपर कॉल्ड वंदे मातरम। The people from Punjab who had settled in America founded the Ghadar Party to help the revolutionaries in India. Narendra Barkatullah went to the Kabul to guide the freedom movement. Lala Hardayal led the movement in San Francisco, USA. The British rulers took some steps to appeasing the Indians. They did not give up their policy of divide and rule. They allowed some Indians to join the government. They made religion the basis of electing representative, which the people opposed. Right? World War first broke out in 1914. अब कुछ लोग जो थे वो ब्रिटिशर्स के साथ भी मिले हुए थे और 1914 में क्या होता है, एक वर्ल्ड वॉर 1 होती है। मैनी इंडियंस हेल्प द गवर्नमेंट इन द वॉर। अब जो इंडियंस थे उन्होंने गवर्नमेंट को हेल्प किया वॉर में, क्या सोचकर, दे थॉट दैट द ब्रिटिश वुड फील ऑब्लाइज्ड एंड ग्रांट फ्रीडम टू इंडिया, कि जो वो इसका एहसान मानेंगे और हमारी इंडिया को फ्री करके चले जाएंगे। बट दिस डिड नॉट हैपन। ऐसा नहीं हुआ। द गवर्नमेंट मेड स्ट्रिक्ट लॉज एंड enforced them very harshly. In 1915, Mohandas Karamchand Gandhi or Mahatma Gandhi, a lawyer, returned to India after a long stay in South Africa. There, he helped the Indians and showed them a new way of fighting injustice. He believed that there is always a peaceful way of doing things. For the next 30 years, he led the struggle for
freedom. तो महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका से when he came back उन्होंने लोगों को बताया कि how उन्होंने help की and they taught them how India can get freedom by following the peaceful policy, and he worked for 30 years. He led the country for 30 years. It's a long time. So this was your chapter. Read it carefully. Thank you.